Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the chapter chemical bonding. So, when we talk about the chemical bonding, then first of all, what is the chemical bonding? When two or more than two atoms combine with each other in a specific ratio in the process of forming a molecule, then whatever the linkage is working in between those of the atoms, that is called the chemical bond. अब अगर हम केमिकल बॉन्ड्स की बात करें कि वाई द केमिकल बॉन्ड इज गोइंग टू टेक प्लेस, केमिकल बॉन्ड बनता ही क्यों है, क्यों एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, क्यों वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, क्यों वो एटम के फॉर्म में नहीं रहते हैं, तो इसके लिए हम जाके देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट इज रिएक्टिव बाय द नेचर। ऑल द एलिमेंट्स आर सर्वाइविंग आइदर इन द फॉर्म ऑफ लैटिस और इन द फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल by using the chemical bonding, but some of the elements are unreactive. And what are the name of these of the elements? ये elements हैं कौन? These of the elements are the helium, neon, argon, krypton and xenon. ये elements हैं जो unreactive by the nature हैं. And what is common in all of these of the atoms? इन atoms के बीच में common क्या है? इनमें कॉमन है इनका कंप्लीट ऑक्टेट। दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल एंड हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल they are inert by the nature. So you can say that these of the elements have the complete octet. So the criteria for being stable is 8 electrons in their valence shell, and in the process of completing that 8 electron in their valence shell they undergo the chemical reaction, and this rule is called the octet rule, that every atom have the tendency to complete their octet, and in the process of completing their octet they undergo the chemical reaction. But why the helium is not completing their octet? हीलियम में क्या हो गया? हीलियम क्यों ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करता? जब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हीलियम हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, only 2 electrons in the first cell. And what is the capacity to carry the electron in the first cell? अगर आप 9th के बेसिस पे देखें बोरबरी स्कीम से, तो एनी सेल हैव द कैपेसिटी टू कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2n²। फर्स्ट सेल के लिए 2 × 1² दैट इज 2। तो फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कैरी ही नहीं कर सकता, तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा? सो हीलियम हैव द कंप्लीट सेल एंड ऑल द अदर एलिमेंट दैट इज द नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन एटसेट्रा, दे हैव द कंप्लीट ऑक्टेट, दैट मींस द 8 इलेक्ट्रॉन. So in the process of getting 8 electron in their valence shell, the elements undergo the chemical reaction. अब यहाँ पे if all the chemical reactions are identical or they are different, all the chemical reactions are not identical, they are different. In the class 10th you have studied about two different type of the chemical bonds, that was the covalent bond and the second one was the electrostatic bond. So we are starting with the electrostatic bond or electrovalent bond, या भी आप कहना चाहें. We are starting with the electrovalent bond. If this is the sodium Na having electronic configuration 281, one electron in their valence shell, combining with chlorine having electronic configuration 287, having 7 electron in their valence shell. यानी अगर हम ऑक्टेट मेथड से देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के प्रोसेस में. सो सोडियम विल प्रोवाइड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन, और क्लोरीन क्या करेगा? दैट विल गेट दैट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. तो यहां पे आफ्टर लूजिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सोडियम बिकम्स सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन बिकम्स Cl नेगेटिव. Now, when these of the two will combine with each other, they will form NaCl. अब अगर हम बात करें कि what is the nature of the NaCl, what is the nature of these of the electrovalent compounds. ये है आपका electrovalent bond. कैसे बना? By the transfer of electron. One is giving the electron, the next one is taking the electron. By the transfer of electron. Now what will be the nature of the electrovalent compounds? Electrovalent compound है तो वो कैसा होगा? Surely when we will see the nature of the molecule, sodium is positively charged, chlorine is negatively charged. और ऐसी कंडीशन में when two end have equal but opposite charges, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज है, when two ends have the equal and opposite charges,
द कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट, द स्पीसीज आर कॉल्ड द डाइपोल। ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है और दो एंड पे अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने की वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम डाइपोल बोलेंगे। अब इस डाइपोल को होने से फर्क क्या पड़ेगा? अगर ये ऐसा कोई स्पीसीज है, ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, अगला मॉलिक्यूल फिर से ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव। अब ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं दे आर अट्रैक्टिंग विथ ईच अदर, सॉरी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। और अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, यानी एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, देन व्हाट विल बी द नेचर? दे मस्ट बी हार्ड। तो अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की जनरल प्रॉपर्टी बताएं, दे आर हार्ड, दे आर ब्रिटल, they are rigid by the nature, they have higher boiling and melting point, and they are capable to show the different refractive angle with respect to the different angle with respect to surface। सरफेस के रिस्पेक्ट में अलग अलग एंगल से आप डालेंगे लाइट तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता जाएगा। क्वार्ट्ज का केस आप देख सकते हैं। अब अगर हम एक सिंपल सा साल्ट का एग्जांपल देखें, साल्ट कैसा होता है? बहुत ही हार्ड, अपने शेप को वेरी नहीं करता, ब्रिटल, अपने शेप को अगर हम उसे टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें तो टेढ़ा मेढ़ा होने की जगह पे वो क्या करता है? टूट जाता है। दैट इज द ब्रिटल बाय द नेचर। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इतना ऊंचा होता है कि उसे दाना भुनने के लिए, जानवली आप लोग सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पे जो पॉपकॉर्न मिलता है, उस पॉपकॉर्न को भुनने के लिए उसे यूज किया जाता है। सो दे हैव वेरी हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे ये तो प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की। तो दूसरे तरह का केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है? पहले तरह का तो बन रहा है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ने डोनेट किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया। लेकिन दूसरे तरह का बॉन्ड बनता है दैट इज मेड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले व्हाट इज द म्यूचुअल शेयरिंग? अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जितना मैं शेयर करता हूं उतना ही आप शेयर करते हैं, अगर मैं 100 रुपए शेयर करता हूं, आप भी 100 रुपए शेयर करते हैं और उससे मिलके 200 रुपए का एक समान होता है, तो कैसा है? म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ है, इक्वली फ्रॉम बोथ द साइड। और बनने वाला जो कंपाउंड है वो दोनों को ही फायदा भी पहुंचाता है, देन दैट इज एक्चुअली द म्यूचुअल शेयरिंग। अब अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के केस में इस म्यूचुअल शेयरिंग को देखें तो क्या होता है? सो हम देख रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये है कोवैलेंट बॉन्ड, और इस कोवैलेंट बॉन्ड में हम एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ही हम बता चुके हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्लोरीन इज 287। अगर यहां पे देखें, यह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसे देने की कोशिश करे तो श्योरली ये दे नहीं सकता, क्योंकि अगर ये दे देगा तो इसका ऑक्टेट कहां कंप्लीट हो रहा है? इसका ऑक्टेट तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, और सेम इसका केस, ये भी इसे इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो करते क्या है, ये दोनों स्पीसीज एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। ये है क्लोरीन विथ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, और ये दूसरा क्लोरीन है विथ अगेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर कर दिया, क्रॉस से एक का इलेक्ट्रॉन शो किया है, डॉट से दूसरे का। तो देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में है, एक क्रॉस के फॉर्म में है, यानी एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट क्लोरीन से है, एक इलेक्ट्रॉन सेकंड क्लोरीन से है। और इस तरह से जो बनने वाला कंपाउंड है, यहां पे देखिए क्लोरीन के भी टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इस क्लोरीन के भी हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बनने वाला जो कंपाउंड है दैट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, दैट इज मेड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द कंपाउंड, सॉरी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो मॉलिक्यूल बना, इसका नेचर क्या होगा? whether that will be hard, brittle, something like the electrovalent compound or something different। श्योरली जब हमने वहां पे बात किया था तो मैंने कहा था the molecule is dipolic because sodium and chlorine both are getting charge, बट यहां पे अगर देखें the molecule is made by the mutual sharing। एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, और ये दो इलेक्ट्रॉन इन्हीं के पास हैं, यानी दोनों के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ है। अगर कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ तो ऐसे मॉलिक्यूल में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं होने वाला। यहां पे लगने वाला फोर्स होता है वैन वाल फोर्स। आई थिंक आप सब वैन वाल फोर्स के बारे में जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाएंगे। वैन वाल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है,
हर एक मॉलिक्यूल हर एक एटम के बीच में लगता है, एंड दैट इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स। तो हम यहां कह रहे हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स है द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, और अगर वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वीक होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, सॉफ्ट बाय द नेचर। अगर कुछ एग्जांपल्स देखें, कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट, ये स्पीसीज क्लोरीन सॉफ्ट और गैस एक्चुअली, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर लिक्विड, सो आइदर दे आर गैस और द लिक्विड। लेकिन क्वेश्चन तब एराइज होता है जब हम बात करते हैं डायमंड की। क्लास 10th में आपने पढ़ा है द कार्बन्स आर नोन फॉर देयर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी। तो यहां पे डायमंड में भी जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। देन व्हाई द डायमंड इज सो हार्ड? डायमंड के हार्ड होने का भी तो कोई रीजन होगा। अगर उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, उनके बीच में ये सिंपल वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज लग रहे हैं, तो डायमंड इतना हार्ड क्यों हो गया? इतना हार्ड कि हम उससे कांच काट लेते हैं। वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल अवेलेबल ऑन द अर्थ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कार्बन की बात करते हैं, हम उसके कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, तो आपने ये भी कहा होगा कि कार्बन हैव टेंडेंसी टू फॉर्म टेट्रावैलेंसी, और जब टेट्रावैलेंसी को हमने शो किया था तो कुछ इस तरह से शो किया था, याद है ना? ये जो हाइड्रोजन है ये दोनों प्लेन में है, ये है अबव द प्लेन और ये है बिलो द प्लेन। इसे हम कहते हैं सॉलिड वेज, इसे कहते हैं डॉटेड वेज, और ये दोनों प्लैनर हैं। अब यहां पे ऐसे कंडीशन में अगर ये डायमंड होता तो यहां पर क्या लगता, कार्बन, और यहीं पे आगे खत्म नहीं हो जाता, ये कार्बन फिर से अगले को चलता, फिर ये आगे चलता, और इस तरह से एक जायंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता। एक बहुत बड़े से मॉलिक्यूल का, मैंने इतना बड़ा हाथ कर दिया तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, जितना बड़ा डायमंड होता है उतना बड़ा एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज तो तब लगते हैं जब कई सारे फोर्सेज हों। इंटर टर्म आप जानते हैं इन बिटवीन होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज तो तब लगते हैं जब कई सारे मॉलिक्यूल हो। अगर पूरा मॉलिक्यूल एक सिंगल, पूरा स्पीसीज एक सिंगल मॉलिक्यूल हो, पूरा डायमंड एक सिंगल मॉलिक्यूल हो, तो उनके बीच में फोर्स कौन सा लग रहा है? द केमिकल बॉन्ड, द कोवेलेंट बॉन्ड। और श्योरली किसी भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से कोवेलेंट बॉन्ड तो स्ट्रांग ही होगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द डायमंड इज सो हार्ड। फिर से अगर मैं इसी बात को कहूं, देन ड्यू टू द जायंट मॉलिक्यूल नेचर, यानी पूरा डायमंड एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, ड्यू टू द जायंट मॉलिक्यूल नेचर ऑफ द डायमंड और ड्यू टू द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड, that is so hard by the nature because the carbon is capable to form the tetrahedral structures। तो ये तो हो गए आपके दो स्पीसीज, दैट इज द कोवेलेंट स्पीसीज, कोवेलेंट कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। क्लास 10th में आपने यही दो ही तरह के केमिकल बॉन्ड्स पढ़े थे, लेकिन अब हम एक और तरह का केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और द डेटिव बॉन्ड। सो हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात करते हैं तो हम कहते हैं द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर मेड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक द कोवेलेंट स्पीसीज, बट अनलाइक कोवेलेंट स्पीसीज दे डज नॉट अंडरगो म्यूचुअल शेयरिंग। वो म्यूचुअल शेयरिंग में नहीं जाते, दोनों शेयर नहीं करते स्पीसीज, यहां पे सिर्फ वन वे शेयरिंग होती है, यानी एक स्पीसीज डोनेट करता है, दूसरा स्पीसीज एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द ओजोन, ओजोन हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला O3। तो यहां पे ये है पहला ऑक्सीजन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। आप सबको मालूम है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में। नाउ व्हेन यू विल सी द कंडीशन, दिस इज द मॉलिक्यूल O2, द फर्स्ट वन हैव 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 8, एंड सेकंड वन अगेन हैव द 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो अगले से बनाएगा कैसे बॉन्ड? इसके पास भी तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? डोनेट कर देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, शेयर कर लेगा म्यूचुअल शेयरिंग में तो इसका ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे होगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर कर लेगा। अब देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन शेयर ही हुए हैं, लेकिन कौन शेयर किया? सिर्फ एक एटम किया, ये ऑक्सीजन इसके साथ शेयर किया, इसने इसके साथ कुछ शेयर नहीं किया, इसके शेयर को एक्सेप्ट किया है। सो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
नॉर्मली हम इसे शो करने के लिए अगर हम यूं शो करें, इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन ने इसी इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए हम इसे एरो से शो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज ये दिखाया हुआ है। और ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस क्या हैं? ये है फॉर्मल चार्जेस। जब ऐसा स्पीसीज बनता है तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज डेवलप होता है। फॉर्मल चार्ज अगला टॉपिक में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज डेवलप होता है। लेकिन अगर हम देखें कि ऐसे स्पीसीज की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे अभी हमने देखा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट कोवेलेंट दोनों ही केस में हमने बताया कि इलेक्ट्रोवैलेंट्स आर वेरी हार्ड वगैरह वगैरह, कोवेलेंट के लिए बताया सॉफ्ट होते हैं। व्हाट्स अबाउट दिस वन? दिस वन इज मेड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर होगा लेकिन कंप्लीट म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, एक दे रहा है दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, इसकी वजह से इनके ऊपर फॉर्मल चार्ज डेवलप है। इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड की तरह स्ट्रॉन्ग चार्जेस नहीं डेवलप हैं, लेकिन फिर भी चार्जेस डेवलप हैं। और ऐसा होने की वजह से इन स्पीसीज का यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कोवेलेंट स्पीसीज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ऐसा होने की वजह से इनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट से ज्यादा होता है। तो आप कह सकते हैं द कोवेलेंट स्पीसीज हैव द लीस्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, देन इट इज द कोऑर्डिनेट एंड देन फाइनली द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। And why the chemical bonds are going to take place? In the process of completing the octet. और इस तरह से हम जो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इन इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को जिन साइंटिस्टों ने दिया था उनका नाम था मिस्टर कोसेल एंड लेविस। उनके नाम पे ही इसे कहा जाता है कोसेल लेविस अप्रोच। So in the next class, we will study about the Coasel-Lewis approach. We will study about the formal charge and we will also study about the nature of the species. किस तरह से केमिकल बॉन्ड्स बनाने के बाद किस तरह से नेचर ऑफ बॉन्ड वेरी करता है। क्या सारे कोवेलेंट बॉन्ड परफेक्टली न्यूट्रल होते हैं? क्या उनमें भी चार्ज होते हैं? इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।